سو ناظرین، یہ ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ سنی ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں، ایک دفعہ پھر سنیے۔ اس قوم کی بقا ہے، اس ملک کی بقا ہے۔ یہ 22 کروڑ کا ملک جو ہے یہ منافقت اور جھوٹ سے جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک جرنیل جو ہے وہ مجاہدین بنائے اور دوسرا جرنیل آ کے انہی مجاہدین کو دہشت گرد بنا دے اور یہ پوری قوم جو ہے اس مصیبت کو بھگتے، پوری قوم خون میں نہلا جائے اور پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ سو ناظرین، آپ نے یہ الفاظ سنے جو اس ویڈیو میں چلانے کے بھی لائق نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ صاحب کے، رانا ثناء اللہ صاحب کے جو ہیں وہ الفاظ ہیں کہ ایک جرنیل مجاہدین بنائے اور دوسرا ان کو دہشت گرد قرار دے کے ان کو مار دے اور اس کے بعد پوری قوم اس کا خمیازہ بھگتے۔ سو ناظرین، یہ کچھ جو ہے وہ کہا جاتا رہا ہے ماضی کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سب سے بڑے لیڈران کی جانب سے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب بھی کچھ اسی طرح کا کہہ چکے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ ہراساں کیا جا رہا ہے، ایف آئی اے کے نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ میں ایف آئی اے کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمیں مجبور مت کریں کہ اگلا رخ ہمارا ایف آئی اے کی طرف ہو۔ کسی ہمارے کارکن کو ہاتھ بھی لگا یا کسی ہمارے کارکن کو ہراساں کیا گیا تو اس کا 10 گنا آپ سے حساب لیں گے۔ آپ سرکار کے ملازم ہیں، ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ کسی عمران نیازی یا کسی سیاسی جماعت کے ذاتی ملازم نہیں ہیں۔ سو ناظرین، عطا اللہ تارڑ صاحب اس وقت جو ہیں وہ وزیر اعظم کے مشیرے ہیں، یہ مشیر خاص ہیں۔ وہ کس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں یہ بھی آپ نے ملاحظہ کی، لیکن ان تمام تر بیانات کے باوجود ان میں سے کسی بھی شخص کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں ہوا، دہشت گردی کا مقدمہ درج نہیں ہوا۔ لیکن عمران خان صاحب نے کیونکہ آئی جی اسلام آباد پولیس، ڈی آئی جی اور ایک جوڈیشل مجسٹریٹ صاحبہ کی جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ان پہ مقدمات کریں گے جو انہوں نے جو ہے وہ غیر قانونی عمل کیا ہے، تو اس کے اوپر ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ بنا دیے گئے۔ ناظرین، ایک آخری ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جن میں نواز شریف صاحب کے جو داماد ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے جو خاوند ہیں کیپٹن اٹیٹ صفدر، وہ کیا کیا کچھ کہہ چکے ہیں اسی آرمی کے بارے میں جس کا وہ کبھی حصہ ہوا کرتے تھے۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ باغی باغی ہاتھ اٹھا کے کو باغی 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 باغی۔ ابھی تو میں نے تم سے بدلہ لینا ہے۔ کراچی تم نے میرے ہوٹل کا دروازہ توڑا، میں اور میری اہلیہ ہوٹل کے اندر، تم میری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرو، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میری نسوں میں عوام خون نہیں ہے، بغیرت خون ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ساری زندگی تم لیفٹیننٹ جنرل رہو گے، میری طرح تم ریٹائرڈ ہو جاؤ گے؟ نہ مشکلیں پیدا کرو نجف حمید پٹواری کے لیے، نہ مشکلیں پیدا کرو اپنے داماد کے لیے، نہ مشکلیں پیدا کرو بریگیڈیئر فاروق کی بیٹی کے لیے۔ تم اگر میری عزت پہ ہاتھ ڈالو، قسم خدا کی میں تمہارے اوپر بم بن کے گر جاؤں گا۔ سو ناظرین، آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ کی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی، جس کے اندر انہوں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک بریگیڈیئر اور ان کی صاحبزادی، پھر ایک اعلیٰ فوجی افسر ان کے داماد کو دھمکی دی ہے کہ ان کے لیے مشکلیں پیدا ہو جائیں گی اگر تم نے ایسا نہ کیا۔ تو ناظرین، یہ گفتگو ہوتی رہی ہے مسلم لیگ نواز کی سینئر ترین لیڈرشپ کی جانب سے، لیکن ان میں سے کسی کے خلاف بھی غداری کے یا دہشت گردی کے جو ہے وہ پرچے نہیں ہوئے پاکستان کے اندر۔ ناظرین، اس سب سے حاصل کیا ہوا بیسیکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ بیان دیا گیا اس کے بعد کچھ لوگوں کو احتجاج کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیج دیا گیا، اور وہ احتجاج کس طرح کا ہوا آئیے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ نازیبا الفاظ بولے گئے ہیں، تو ہر ایک عورت کو اس چیز میں ایک بےعزتی محسوس ہوئی ہے کہ عورتوں کے خلاف اس طرح کے نازیبا الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ اچھا، کس نے اور کیا نازیبا الفاظ یوز کیے ان کے لیے؟ ان کی
मतलब अच्छे अल्फाज भी उनके लिए इस्तेमाल हुए ना कि जो अदालत में जैसे जिस जगह पे उनके लिए ये वर्ड्स यूज हुए। control. किसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? सो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है जिसके अंदर एक खातून जो है वो बहरहाल एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब ने मजिस्ट्रेट साहिबा के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, नाजेबा इस्तेमाल किए हैं अल्फाज जो हैं। लेकिन यहाँ पे वो बताने से कासिर रही है कि अल्फाज इस्तेमाल किए किसने और क्या किए, जिससे ये ज़ाहिर होता है, बल्कि साबित होता है कि ये एहतजाज करने वाले लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किस बारे में एहतजाज कर रहे हैं। और उनका हुलिया भी बताता है कि ना तो वो किसी सोशल वर्कर या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है, ना ही वो वकला नज़र आ रहे हैं कि जिनका अदलिया और उनसे जो मुंसलिक इदारे हैं उनसे कोई ताल्लुक हो। नाज़रीन, एक वीडियो आपको अभी और दिखाते हैं जिनमें एक और साहिब जो है वो एहतजाज करते नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। हाँ, इनके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। फीमेल जजेस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं या फीमेल जजेस के खिलाफ जुबान जिन्होंने इस्तेमाल की उनके खिलाफ कर रहे हैं? जिन्होंने जुबान इस्तेमाल किया उनके लिए एहतजाज। क्या जुबान इस्तेमाल की है? नाजेबा अल्फाज किसने की है? ये हमें भी किसी ने बताया, हम आ गए एहतजाज में। नहीं, नाजेबा अल्फाज क्या इस्तेमाल हुए हैं, किसने किए हैं, मकसद कोई मत नहीं, किसने की है भैया मैं ये तो नहीं बता। जी हाँ नाज़रीन, अब ये शख्स ये तो नहीं बता सकता कि वो गालियाँ किसने दी हैं या क्या गालियाँ दी हैं, गालियाँ दी भी हैं कि नहीं दी। और इस शख्स के जो पाकिस्तान का एक आज़ाद शहरी है, किस तरह से इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेगेंडा करने के लिए, मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को बुलाकर उनको पैसे दिए जाते हैं, चंद 100,000 के एवज़ जो है ये लोग इस तरह के फिर बयानात जो हैं वो देते हैं और इस तरह के फेक जो एहतजाज है वो करते हैं। एक और प्रोटेस्टर नाज़रीन आपको उसकी वीडियो भी दिखाते हैं। नाजेबा कह रही हैं जो जज साहब हैं उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहली बात तो वो सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं है, और दूसरा जो आप ये आपने प्ले कार्ड्स हाथ में पकड़े हुए हैं, ये पोस्टर्स जो हाथ में पकड़े हुए हैं, इस पे आप लोगों ने लिखा है कि उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो किसने अल्फाज नाजेबा इस्तेमाल किए हैं और क्या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे आप? हमें तो नहीं, हमें तो इतना ही बताया गया। किसने बताया आपको? किसने बताया है? जो हमारे साथ आए हैं। कौन आया? के कहने पे आप यहाँ पर आए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं? भाई ये वारिस इसका नाम। भाई वारिस है। नहीं तो ये आप जी, वारिस भाई जो हैं उनके कहने के ऊपर ये खातून यहाँ पे इस एहतजाज के अंदर आ गई हैं और क्या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब ने वो भी नहीं पता, किसने किए वो भी नहीं जानती। और ये खातून भी जो है वो हुलिये से कहीं से भी सोशल वर्कर आपको दिखाई नहीं देंगी, कोई वकील दिखाई नहीं देंगी, कोई बैरिस्टर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन प्ले कार्ड हाथ में उठाए हुए हैं और साथ एक काफ़ी मुअम्मर खातून और बैकग्राउंड के अंदर भी ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो कहीं से भी ऐसे किसी वाक़ये से मुंसलिक नज़र नहीं आती। सो नाज़रीन, ये मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। इससे हुआ क्या? कामरान खान जो पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर जो है वो तजिया निगारों में से हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने ट्वीट की कि सियासतदानों के हाथों आर्मी चीफ की खुली रसवाई पर मुकम्मल खामोशी। इमरान खान की आईजी इस्लामाबाद तनकीद पर दहशतगर्दी केस ये बनाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तज़हीको तौहीन के रिकॉर्ड टूटे मगर खामोशी। इमरान खान की सेशन कोर्ट जज पर तनकीद, इमरान खान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच में तौहीन अदालत मुकदमा चलेगा। और उन्होंने कुछ पिक्चर शेयर की कि पूरी आलमी दुनिया के अंदर तमाम जो खबर रसा इदारे हैं उन्होंने इसको टॉप स्टोरी के तौर पर जो है वो अपने अखबारात और अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है इसको शाया किया है। आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम इंडिया टुडे, BBC न्यूज़, CNN, AP न्यूज़, NPR, राउटर्स, द गार्डियन, ABC न्यूज़। नाज़रीन, इन तमाम आलमी जरीदों ने जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले दहशतगर्दी के मुकदमे का जो है वो तज़हीक उन्होंने करार दी है। उन्होंने ये इसको जो है वो एक फ़न करार दिया है। आइए आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो कामरान खान साहब ने अपने ही ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है।
कैमरा ने इमरान खान की बराह रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। कोई बात नहीं। जी हाँ, आप नाजरीन देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो है वो जो कंपाइल की गई है उसमें डिफरेंट जो इंटरनेशनल इदारे हैं, सहाफ़ी इदारे हैं, जो सहाफ़त के इदारे हैं, उन्होंने ट्वीट्स की हैं, उन्होंने जो है वो कॉलम्स लिखे हैं, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है बाकायदा पूरी खबरें शाया की हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जा रहा है। किस बुनियाद पर? सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने एक पुलिस इस्लामाबाद पुलिस चीफ के ऊपर जो है मुकदमा करने का कहा। ये एक मजिस्ट्रेट साहबा से ये कहा कि आपके ऊपर भी एक्शन होगा। नाज़रीन आइए आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहदा ने जो है इसके ऊपर बाकायदा नोटिस लिया है आज। जी हाँ, बिल्कुल। आइए आपको बताते हैं कि इस पे फर्दर क्या पेशरफ्त हुई है। और शफाफ कानूनी सिस्टम के निफाज का मुतालबा करता है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहदा का कानून की अमलदारी और कशीदगी में कमी का मुतालबा भी सामने आया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, तजियाकार और सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब। समी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब, अक़वाम मुत्तहदा ने नोटिस ले लिया है, इमरान खान पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या समझ? जी हाँ, बिल्कुल। अक़वाम मुत्तहदा ने जो है वो इसका नोटिस लिया है और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान पर लगने वाले इल्ज़ामात से हम वाकिफ़ हैं और उन्होंने एक आज़ाद इंक्वायरी का भी जो है वो मुतालबा किया है। सो नाज़रीन, इस वक्त पूरी आलमी दुनिया के अंदर जो है ये वफाकी हुकूमत और उनके मातहत इदारे जो हैं वो महज एक मजाक बन के रह चुके हैं। ठीक है जी, आइए आपको एक और वीडियो दिखाते हैं कि नया पाकिस्तान उन्होंने एक वीडियो कंपाइल की है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान में पैमरा ने जब इमरान खान की आवाज़ को दबाया तो उसका क्या रिएक्शन आया है। नाज़रीन, इसी तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है इमरान खान साहब से, उनके फॉलोअर्स की जानिब से। बहुत ही सख्त नाकिद रहे हैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब इमरान खान साहब के, लेकिन उनकी क्या राय है इस बारे में, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अल्लाह को आपने जान नहीं देनी, अल्लाह से डर जाए। इस किस्म के झूठे इल्जामात उस शख्स के ऊपर जिसने यूएनओ के अंदर बेहतरीन तकरीर की, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, उस शख्स के ऊपर जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर इतनी ताकतवर आवाज उठाई कि कभी किसी मुसलमान हुक्मरान ने नहीं उठाई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 15 मार्च हर साल जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दिन करार दे दिया गया। उस शख्स के ऊपर जिसने 8 से 10 साल पहले इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वहां पे सलमान रुश्दी आया हुआ है और वो गुस्ताखे रसूल है, मैं ऐसे फोरम से खिताब नहीं करूंगा। अब उस शख्स को भी अपने इश्क़े रसूल का सर्टिफिकेट इन जाहिल मौलवियों से लेना पड़ेगा, इन जाहिल पॉलिटिशियन से लेना पड़ेगा, इन जाहिल उन पिट्ठुओं से लेना पड़ेगा जो चंद इदारों के आलाकार बने हुए हैं। शर्म करें, आप पे भी कल को बुरा वक्त आ सकता है। और ये जुमले उस शख्स के हैं जो सबसे बड़ा क्रिटिक है इमरान खान साहब का। जी हाँ नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब के खुद उनकी अपनी जुबानी जो है वो सुना है कि वो सबसे बड़े नाकिद रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहरहाल इस चीज़ की इंतहाई मजम्मत की है कि आपने उस शख्स के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा दायर कर दिया है जो कि आलम इक़वाम के अंदर जो है वो पाकिस्तान का नाम किस तरह से रोशन करता रहा है। सो नाज़रीन, ये थी पूरी अपडेट इमरान खान के केस के ऊपर। अगली वीडियो तक अब हमें इजाज़त दीजिए। अपने इर्द गिर्द और अपना बहुत सारा लोगों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।